سندھ اور بلوچستان میں طوفانی بارش سے تباہی، بری بحری فوج اور رینجرز کے جوان امدادی کارروائی میں مصروف، دادو اور جھلمکسی میں سینکڑوں افراد محفوظ مقام منتقل۔ وانگو پہاڑی پر 8 گھنٹے آپریشن کے بعد ہندو خاندان کو بچا لیا گیا، 1000 افراد کو کھانا فراہم کیا۔ جھلمکسی اور گنداوا میں بھی رابطہ بحال کر دیا گیا۔ ترجمان پاک فوج کا بیان، سول انتظامیہ بھی متحرک، بی بی نانی پل اور قومی شاہراہ کی مرمت شروع کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی جوہی آمد، سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا، محکمہ آبپاشی اور ضلع انتظامیہ پر برہمی کا اظہار۔ تحریک انصاف کو بھی نہ بھولے، کہا ملک بھر میں بارش ہوئی ہے، پی ٹی آئی کو صرف تنقید کرنا آتی ہے، انہوں نے آٹے اور چینی کا بحران پیدا کر دیا ہے۔ کراچی میں بارش سے تباہی، ملیر ندی میں طغیانی کورنگی کاز وے ڈوب گیا، انڈسٹریل ایریا جانے والے کو مشکلات کا سامنا۔ ندی میں پانی کا تیز بہاؤ، قیوم آباد سے کورنگی کراسنگ جانے والا راستہ بند۔ تو آمد و رفت ہے یہاں کی آنے جانے کی، وہ جو ہے منقطع ہو جاتی ہے ہر سال۔ مشکلات کا سامنا اس وقت ہم لوگوں کو کافی گھوم کے جانا پڑ رہا ہے اور کوئی ہمارے پاس متبادل راستہ نہیں ہے اس وقت نا۔ کافی مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے، کافی پانی جمع ہوا ہوا ہے، کافی مشکل ہو رہی ہے، آنے جانے میں بھی کافی تکلیفات ہو رہی ہیں۔ میئر کراچی فنڈز اور اختیارات کی کمی کا رونا روتے رہے، این ڈی ایم اے اور ایف ڈبلیو او نے 1 ہفتے میں ہی مشن مکمل کر دیا، کراچی کے مختلف نالے صاف کر دیے، لوگوں نے میئر کراچی کی کارکردگی پر سوالات اٹھا دیے۔ میئر کراچی کی بات کر رہے ہیں آپ، تینٹی سے لے کے سوراب گوٹ تک جو گرین بیلٹ کی گرل لگی ہوئی تھی نا لوہے کی، وہ کہاں گئی؟ یہاں پہ جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہے وہ ڈائریکٹر کی نہیں مانتا۔ اب یہاں کمپلین کرنے جاؤ گٹر کی، آپ 6 دن کمپلین کریں، آپ کوئی نہیں آئے گا۔ راجن پور میں مونسون کا دھواں دھار اسپیل، کوہ سلیمان سے 35,000 کیوسک کا سیلابی ریلا، زمینی علاقوں میں فصلیں زیر آب آنے کا خدشہ، لوگوں کو محفوظ مقام منتقل ہونے کی ہدایت۔ لینڈ سلائیڈنگ اور پھسلن کے باعث کوئٹہ روڈ بند، گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔ مریم نواز 11 اگست کو نیب لاہور میں پیش ہوں گی، فیصلہ وکلا خاندان اور پارٹی رہنماؤں کی مشاورت سے کیا گیا۔ قافلے کی صورت میں جاتی عمرہ سے نیب آفس پہنچیں گی، لیگی رہنما سے 200 ایکڑ اراضی سے متعلق تفتیش ہوگی۔ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی شجرکاری مہم، روزانہ 35 لاکھ درخت لگائے جائیں گے، وزیر اعظم عمران خان کی قوم سے مہم کا حصہ بننے کی اپیل۔ آج ٹائیگر فورس ڈے بھی منایا جا رہا ہے، ٹائیگر فورس پنجاب میں 12 لاکھ پودے لگائے گی۔ شجرکاری مہم کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا، گرین سیلفی فیچر ایپلیکیشن کی منظوری دے دی گئی۔ اپوزیشن ارکان کو پودے گننے کا شوق رہتا ہے، ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے گنتی کر سکیں گے، معاون خصوصی عثمان ڈار کا بیان۔ غلط کام کیا نہ کرنے دیں گے، دامن صاف ہے، 10 بار بلانے پر بھی نیب جائیں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب کا مخالفین کو پیغام، کہا مثبت تنقید کی جائے، ہم کچھ عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، صحافی کو جواب۔ پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا، پل بھر میں اپنے بیگانے ہو گئے، لاہور میں شجرکاری مہم کی تقریب، عظما کاردار کی، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے ملنے کی کوشش، سیکیورٹی گارڈ نے رکن صوبائی اسمبلی کو اسٹیج پر جانے سے روک دیا، ان کی پارٹی رکنیت منسوخ کی جا چکی ہے۔ ملک میں کرونا کے کیس کم ہونے لگے، 24 گھنٹے میں 634 کیس رپورٹ، تعداد 2,84,121 ہو گئی، 8 افراد چل بسے، اموات 6,082 ہو گئی، 17,791 زیر علاج ہیں۔ خیبر پختونخوا میں لاک ڈاؤن ختم، پیر سے تمام شعبے کھل جائیں گے، تعلیمی ادارے اور شادی ہال بند رہیں گے، سیکریٹری داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا،
पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी पाबंदी उठा ली गई। मजहबी इज्तिमात के लिए इजाजत लेना होगी। कोरोना में कमी के बाइस पाकिस्तान रेलवे का अहम कदम, समाजी फासले की पाबंदियां खत्म कर दी। तमाम ट्रेनें आज से 100% मुसाफिरों को लेकर मंजिल की जानिब रवाना हो रही हैं। मॉनसून के बायस थर की किस्मत जाग गई। हर तरफ हरियाली, सयाह तफरीकी मकामात पहुंचने लगे। किसी ने ऊंट की सवारी की तो कोई घोड़सवारी के मजे लेता रहा। मकामी अफराद को भी रोजगार मिल गया। हम दूसरों को भी ये पैगाम देंगे कि मिट्टी और सलामकोट और थर पार कर घूमने आए। ये हमारा इलाका है, सिंध का इलाका है और बहुत अच्छा इलाका है। सबको मैं यही बोलूँगी कि अगर आपको एंजॉय करना है तो यहाँ पे आ जाए। बहुत अच्छा मौसम है और यहाँ का माहौल भी अच्छा है। यहाँ का मंजर इतना प्यारा लगा है, हैदराबाद में कहीं भी नहीं है ऐसा मंजर। समझो इस वर्ल्ड में मरी में आ गए हम। तेल फरहमी पर पाक सऊदी मुआहदे को 1 साल हो गया। मुआहदा काबिल तौसी था। सऊदी हुकाम पाकिस्तान की दरख्वास्त पर गौर कर रहे हैं। तर्जुमान वज़ारत खजाना का बयान, मुआहदे का पहला हिस्सा 9 जुलाई 2020 को मुकम्मल हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 बजे में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे। जिक्र करेंगे अंदरूने सिंध का। सिंध में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। बर्री बहरी फौज और रेंजर्स के जवान इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। दादू और झल मक्सी में सैकड़ों अफराद महफूज मकाम मुंतकिल कर दिए गए। वांगू पहाड़ी पर 8 घंटे ऑपरेशन के बाद हिंदू खानदान को बचा लिया गया। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि 1000 अफराद को खाना फराहम किया, जबकि झल मक्सी और गंदवारा में राब्ते बहाल कर दिए गए। सिंध बारिश के बाद सैलाब से तबाही, पाक फौज इमदादी कार्रवाइयों में पेश। दादू, झलमक्सी समेत सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी इंजीनियरिंग बोर्ड से मुतासरा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। वांगो पहाड़ी पर फंसे हिंदू खानदान को 8 घंटे बाद ऑपरेशन के जरिए महफूज मकाम पर पहुंचा दिया गया, जबकि 1000 फंसे अफराद को खाना फराहम किया गया है। झलमक्सी और गंदावा में राब्ता बहाल कर दिया गया। पिस्सी पुल और हाईवे भी झलमक्सी तक खोल दी गई, जबकि कोयटा, जैकबाबाद, गवादर, कराची शाहराहें मुख्तलिफ मकामात पर बंद हैं। पाक फौज के साथ पाक बहरिया की टीमें भी इमदादी सरगर्मियों में शामिल हैं। इसके साथ साथ वज़ीर आला सिंध ने दादू में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया। महकमा आबपाशी और ज़िला इंतजामिया पर बरहमी का इजहार किया। PTI पर तनकीद करते हुए कहा कि मुल्क भर में बारिश हुई है, PTI को सिर्फ तनकीद करना आती है। उन्होंने आटे और चीनी का बहरान पैदा कर दिया है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का दादू में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, इलाकों का फिजाई जायजा लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन में सुस्त रवि पर महकमा आबपाशी, जिले इंतजामिया पर शदीद बरहमी का इजहार किया। वजीर आला ने कहा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत कर दी। पाक फौज रेस्क्यू टीमें मुतासिरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। वजीर आला ने कहा, PTI सिर्फ तनकीद करना चाहती है। वो तनकीद करते हैं, उनको एक ही काम आता है, वो करते रहेंगे और वो करते रहे, और कोई काम उन्होंने सीखा नहीं है। मुराद अली शाह का कहना था कि PTI ने आटे के बाद चीनी का बहरान भी पैदा कर दिया है। उधर बोलान में मूसलाधार बारिश के बाद तबाही, बीबी नानी पुल और कौमी शाहराह को मुख्तलिफ जगहों से सैलाबी रेला बहा ले गया। बलूचिस्तान हुकूमत और जिला इंतजामिया कच्छी ने मकामी बुनियादों पर मरम्मत का काम शुरू कर दिया। जिला बोलान में 2 रोज से जारी मूसलाधार बारिशों के बाद दरियाए बोलान में सैलाबी रेला आ गया, जिससे बलूचिस्तान को दूसरे सूबों से मिलाने वाली बीबी नानी पुल को नुकसान पहुंचा। सैलाबी रेला कौमी शाहराह को 6 मुख्तलिफ मकामात से बहा ले गया। सिंध बलूचिस्तान कौमी शाहराह पर ट्रैफिक 2 रोज से मुअत्तल है। कौमी शाहराह के दोनों जानिब सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बलूचिस्तान हुकूमत और जिले इंतजामिया कच्छी ने हंगामी बुनियादों पर बीबी नानी पुल और कौमी शाहराह के मुख्तलिफ हिस्सों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है।
राजनपुर में मानसून बारिशों के बाद कोहे सुलेमान से 35,000 क्यूसेक के सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। जमीनी इलाकों में फसलों को नुकसान का खदशा है। पानी इंडस हाईवे से गुजरकर दरियाए सिंध में गिरेगा। लोगों को महफूज मकाम मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई है। राजनपुर में मानसून का धुआंधार स्पेल। कोहे सुलेमान से 35,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला जमीनी इलाकों में बढ़ने लगा। सैलाब से प्याज और कपास की फसलें जेर आब आने का खदशा है। कच्ची कैनाल से गुजरता हुआ पानी इंडस हाईवे से गुजरकर दरिया सिंध में गिरेगा। पीडीएमए और जिला इंतजामिया ने मुतलका महकमों को अलर्ट कर दिया, जबकि लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई है। सिंध और बलूचिस्तान में बारिशों के बायस हब डैम पानी से भर गया। पानी की सतह 327 फीट तक पहुंच गई है। मज़ीद तफ़सीलात हासिल करेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे दीदार अली से। जी दीदार अली, बताइएगा इस वक्त पानी का लेवल क्या है? जी बिल्कुल, जो हालिया बारिशें हुई इसके बाद हब डैम में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और अपनी जो सैलाबी रेले हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी है। अभी की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें देखा जा रहा है कि 1 फुट का मजीद इजाफा हुआ है और पानी की जो सतह है वो 328 तक पहुंच चुकी है। और अगर देखा जाए तो पानी का जो लेवल है हब डैम का वो 339 फीट है। उसके बाद जो स्पेल वे से पानी का अखराज शुरू हो जाएगा। इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर हब रुआना गुल ने हब डैम का दौरा भी किया है और वहाँ पर जो करीबी इलाके हैं उनका विजिट भी किया है। और हब नदी के किनारे जो इलाके में आबाद हैं लोग वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं उन इलाकों का भी दौरा किया है और इमरजेंसी सेंटर कायम कर दिया गया है कि अगर स्पिल में से पानी का अखराज शुरू होता है तो लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाएगा। बिल्कुल, हब डैम में 339 फीट पानी जखीरा करने की गुंजाइश मौजूद है, जिसके बाद स्पिलवेज खोल दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में बारिश के बाद मलीर नदी में तुगयानी से कोरंगी कॉजवे डूब गई। इंडस्ट्रियल एरिया जाने वालों को मुश्किलात का सामना। इलाका मकीन कहते हैं फौरी मुतबादिल रास्ता फराहम किया जाए। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ फारूकी से। जी काशिफ फारूकी, इस वक्त मलीर नदी में कॉजवे के मकाम पर पानी का लेवल क्या है? जी मोनस, गुज़िश्ता 3 रोज से कराची में बारिश का सिलसिला जारी है और ये जब भी कराची में बारिशें होती हैं तो मलीर नदी के जो कॉजवे का मकाम है यहाँ पर जो है वो तुगयानी के बायस जो ये रास्ता जो है वो बंद हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता है कराची के जो कोरंगी सनती एरिया उसके तरफ जाने के लिए। जो सबसे ज्यादा मुश्किलात पेश आ रही है उस इलाके में जाने के लिए उन लोगों को पेश आ रही है जो कि कोरंगी सनती एरिया में काम करते हैं। गुज़िश्ता 3 रोज से ये सड़क बंद है और मुसलसल पुलिस जो है दोनों तरफ खड़ी हुई है और जो वहाँ पर लोग फंसे हुए थे गुज़िश्ता रोज तक उसमें जो है वो रेस्क्यू एहलकार उनको जो है बमुश्किल निकाल पा रहे थे। लेकिन आज ये रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद है। रेस्क्यू एहलकार अभी भी वहाँ काम कर रहे हैं और जो पानी के लेवल की आप बात करें, पानी जो है वो मलीर से होता है, वो मलीर नदी के पूरे क्रॉस करके यहाँ पर आता है और मुस्तकिल हर साल का ये मामला है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है कोई मुस्तकिल हल नहीं निकाला जा रहा है इस मामले का। तकरीबन हर साल मानसून के मौसम में इसी तरह बारिशें हो रही हैं और इसी तरह कई रोज जो है वो कॉजवे बंद रहता है। यहाँ के लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, मलीर नदी का तकरीबन ये एंड समझा जाता है, जिसके बाद पानी समंदर में जाता है और यहाँ पर तमाम तर दबाव पानी का हर साल बरसात के मौसम में देखा जाता है। बहुत शुक्रिया काशिफ फारूकी।